very pleasant good morning, my dear students. Children, today we are going to continue chapter number 11, the Gupta and the post-Gupta period. Children, in our previous class, we have discussed about Chandragupta II, then later Guptas, right? In later Guptas, we have discussed about Kumargupta and Skandagupta, right, children? And then after that, we have discussed about the post-Gupta period, right? In that, we have discussed about the Harshvardhan, right? And then one more topic we have discussed, that was Huinsang account, right? So these were the topic which we have already discussed in our last class, right? So in our previous class, we have already discussed this topic, right? And children, today we are going to discuss the rest of the topic. So today we will discuss about the Chalukya dynasty. Under that we are going to discuss about the Pushkin II, then the Pallava dynasty, right? Then administration, revenue and new features. So by today we are going to complete this chapter. Okay children? Yes? So children, come on, everyone, be ready with your book. Open your book, come on. And please take one pencil also in your hand so that you can mark some important line in your book. But mark it with pencil only. Okay children? So children, just wait. I am sharing the screen. Then we will discuss about today's topic. Yeah. See, this is our chapter number 11, the Gupta and the post-Gupta period, right? See, so today first topic which we are going to discuss is about the Chalukya dynasty, right? So children, after the decline of the Satavahanas, many small kingdoms arose in the Deccan. The Vakatakas were the most powerful of these. They, however, ruled for a brief period. These were succeeded by the Chalukyas. Their capital was Vatapi, that is Badami, okay, and it is in Karnataka, okay. So children, after the decline of Satavahanas, okay, जब decline हुआ किनका, जो Satavahanas थे, okay, and many small kingdom arose, okay, in the decade. So इसके बाद क्या, बहुत सारे छोटे छोटे kingdoms निकल कर आए, understood, जब सातवाहनास का डिक्लाइन हो गया तो, ओके. सो द वटका, और इसमें से जो सबसे पावरफुल जो था, जो स्मॉल किंगडम्स में से, वो थे वकाटकास, ओके. ये बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर थे, अंडरस्टूड. दे हाउएवर रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, और ये काफी लंबे समय तक ये लोगों ने रूल किया था. इज दैट क्लियर? देन दे वर सक्सीडेड बाय द चालुक्यास आल्सो. और चालुक्यास का कैपिटल क्या था चिल्ड्रन? उनका कैपिटल था वतापी, और यू कैन से Badami. Understood? And children, here you can write there were also three different types of Chalukya dynasty also. It is not mentioned in your book, but you can write. Okay, there was Badami Chalukya, which is mentioned children in your book, right? Their capital was Vatapi, that is Badami. Okay, so this was one dynasty. Then other also it was there in Eastern Chalukya were also there. Then Western Chalukya was also there. Okay, now the earliest Chalukya with their capital was Badami. Okay, that means Vatapi. It is in Karnataka. Okay, and the greatest ruler children of this dynasty, okay, was Pushkin II, that we are going to discuss. Okay, so the greatest ruler of Chalukya dynasty children, please remember, that is Pushkin II. He was very powerful ruler, okay, very famous prominent ruler of Chalukya dynasty. Clear? And you should remember that there are three distinct, that means three type of Chalukya dynasty. One is Badami, Eastern Chalukya and Western Chalukya. Okay. Now Eastern Chalukya children, it emerged after the death of Pushkin II. Okay. In the Eastern Deccan, and their capital was Vengi. Okay. They had a different capitals of Eastern Chalukya. They were having the capital Vengi. Understood? Then next, Western Chalukya children, they emerged in the late 10th century and they ruled from Kalyani. Understood? So you have to remember that there was three different, okay, there were three distinct but related Chalukya dynasty. They were Badami Chalukya, Eastern Chalukya and Western Chalukya. Okay, but the most important among this dynasty
was the Badami Chalukya. Understood? That means which is mentioned in your book. Okay, and their capital was Vatapi, or you can say Badami. And here who used to rule? That is Pushkin II. Okay, and even children, the Chalukya dynasty, it reached its peak during the region of Pushkin II. Okay, during this, okay, highest peak. Okay, during this Pushkin II, it reaches to greatest peak. And his grandfather, children, Pushkin I was there and had created an empire around Vatapi. Okay, और children, ये जो पुलिश्किन टू के एक जो ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था पुलिश्किन फर्स्ट. अंडरस्टूड? और उन्होंने भी जो है एम्पायर बतापी के आसपास क्रिएट किया था. ओके, मीन्स जो आसपास का एरिया है, ओके, कर्नाटका का, वहां पे उन्होंने जो है ऑक्यूपाइड किया था टेरिटरी. ओके, even children, this Chalukya, he was the greatest of the Chalukyan king, and he extended the Chalukyan rule to most part of the Deccan side. Okay, so उन्होंने जो empire अपना extend किया था, वो mostly किस तरफ था? In the southern side, mostly in the central side, in the Deccan side. Okay, and children, one more thing, this, okay, that we will discuss now. We will discuss about Pushkin II. Okay, see, the most famous Chalukyan ruler was Pushkin II. Understood? And children, his birth name, if you want to write, you can write, children. His birth name was Erai. Spelling is Eraya. Okay, his birth name was Erai, and information about this is, children, is obtained from Ahiol inscription. Okay, one place is there, Ahiol. From there, we come to know that his birth name was Erai. Okay, that means the spelling you can write Eray. Okay, Erai. Clear? So from where do we get the information? We obtain information from the Ahiol inscription. Okay, clear? And we get information about his region also from the Prashasti of his court poet. And what was the name of his court poet? It was Ravi Kirti. He informs us that the king defeated Harsha and checked his advance into the Deccan. Pushkin II also raided the territories of the Pallavas, and he defeated the Pallava king Mahendra Varman first also. Okay, so now see, children, we get information about his region. कहाँ से पता चलता है हमें उनके रेन के बारे में? फ्रॉम द प्रशस्ति. ओके, जो लिखी गई थी, उनके कोर्ट पोएट ने लिखी थी, जिनका नाम था रवि कीर्ति. अंडरस्टूड? और उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? दैट द किंग डिफीटेड हर्षा. उन्होंने किसको हराया था चिल्ड्रन? हर्षा, जो हम लोग ने हर्षवर्धन को पढ़ा था, राइट? द हर्षवर्धन डायनेस्टी, दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड, राइट चिल्ड्रन? सो ही हैज डिफीटेड, उन्होंने उसको भी हराया था. क्लियर चिल्ड्रन? और वो किस तरफ रूल कर रहे थे? ही वॉज मोर पावरफुल इन द नॉर्थ साइड, राइट? तो उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, उन्होंने रोका था वो साउथ में आने के लिए. ओके, क्योंकि हर्षवर्धन वो चाहते थे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बने, वो साउथ पे अटैक करके वो जगह वो कॉन्कर्ड कर ले. ओके, वो अपने एम्पायर में ऐड कर ले. ओके, एक्सटेंड कर ले, और नॉर्थ से वो साउथ में भी उनका रूल हो. बट ऐसा नहीं हो पाया. जो पुलिश्किन II ने थे, उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था. ओके, एंड चेक दिस एडवांस इनटू द डेकेड. ओके, उनको हरा के वो पुलिश्किन II जो है, उन्होंने वो जीत गए. ओके, नाउ पुलिश्किन II आल्सो रेडेड द टेरिटरीज ऑफ द पल्लवास. जो पल्लवास रूलर्स थे, जो किंग थे, उनको भी जो है पुलिश्किन II ने हरा दिया था. ओके, ही डिफीटेड द पल्लवा किंग. तो पल्लवास के किंग थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन. ओके, उनको भी इन्होंने हरा दिया था. किसने हराया था? पुलिश्किन II ने हरा दिया था. ठीक है, कौन से किंग के? जो पल्लवा डायनेस्टी के जो किंग थे, जिनका नाम था महेंद्र वर्मन फर्स्ट. ओके, तो उनको उन्होंने हरा दिया था. क्लियर? नाउ पुलिश्किन II सेंट एन एम्बेसी टू द कोर्ट ऑफ खुसराव II, the king of Persia. This strengthened the ties of friendship between the two kingdom. Okay, जो पुलिश्किन II थे चिल्ड्रन, उन्होंने एक जैसे हम लोग राजदूत, एक रिप्रेजेंटेटिव, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भेजा था टू द कोर्ट ऑफ खुसराव. खुसराव एक राजा थे जो कि किंग ऑफ पर्शिया के वो राजा थे. अंडरस्टूड? कहाँ के राजा थे? पर्शिया के. ओके, जिनका नाम था खुसराव. वहां पे उनको भेजा गया था. ओके, दिस स्ट्रेंथेन द टाइज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू किंगडम.
और इससे क्या हुआ, जो एम्बेसी जो आया था पर्सन, इससे ये दोनों की जो किंगडम्स की फ्रेंडशिप और ज्यादा मजबूत हो गए. दैट मीन्स उनके अच्छे रिलेशंस थे. ओके, नाउ हुइन सेंग during his stay in India visited the court of Pushkin too. Okay, he also toured the countryside and was impressed with the administration. और इसी समय पुलिशकिन टू के समय भी कौन आया था चिल्ड्रेन, और देखिए हुइन सैंग एक और बार विजिट किए थे. किनके समय पे चिल्ड्रेन, हर्षवर्धन के समय पे. राइट, हमने हुइन सैंग अकाउंट पढ़ा था, उस समय में भी उन्होंने विजिट किया था, और वो पुलिशकिन टू के भी समय में वो इंडिया में विजिट किए थे. राइट, हुइन सैंग वाज अ Chinese traveler, right? Chinese pilgrim who has visited India, right? So he also visited the court of Pushkin too also, and he also toured the countryside and was impressed with the administration. और ये जो पुलिशकिन टू का ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर था जो वो बनाए थे, ओके, सो वो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे. ओके, बहुत ज्यादा वो खुश थे. Now, the Chalukyas became weak after the death of Pushkin too. The Rashtrakuta replaced them. Okay, so children, ये जो चालुक्यास वो धीरे धीरे वीक होने लगे. किसके डेथ के बाद, जब पुलिशकिन टू की जब डेथ हो गई. ओके, उसके बाद जो है चालुक्या डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा. ओके, वीक होने लगा. अंडरस्टूड. और चिल्ड्रेन, ऐसा नहीं है कि पुलिशकिन टू के बाद और ज्यादा और रूलर नहीं आए, ऐसा नहीं है. और भी बहुत सारे रूलर्स पुलिशकिन टू के बाद भी आए थे, बट वो उतने पावरफुल नहीं थे. ओके, और जो लास्ट चालुक्य डायनेस्टी का जो रूलर था चिल्ड्रन, प्लीज नोट डाउन, ही वाज कीर्तिवर्मन सेकंड. ओके चिल्ड्रन, प्लीज हियर यू कैन नोट डाउन दैट the last Chalukya ruler, okay, was Kirtivarman second was the last ruler of Chalukya dynasty and was defeated by the Rashtrakuta king. और जो लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड को किसने हराया था, वो थे एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एक किंग था जिसका नाम था दंती दुर्गा. ओके चिल्ड्रन, प्लीज नोट डाउन दैट द लास्ट Chalukya dynasty ruler was Kirtivarman II and he was defeated by the Rashtrakuta king that was Danti Durga. Understood? And he founded the Rashtrakuta dynasty. Understood? So उन्होंने फाउंड किया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को. Clear children? Yes. Now we will talk about the Pallavas. Clear? So this is clear about Chalukya dynasty children. Yes. Now we will discuss about the Pallava dynasty. Okay, now the Pallavas, they ruled from Kanchipuram, or you can say Kachi, that is near Chennai. Understood? Now Mahendravarman first, he ruled from 600 to 630 CE, that is means common era, and Narasimha Varman, he ruled from 630 to 668. Okay, and they were the powerful ruler of this dynasty. And Narasimha Varman first defeated Pushkin II and captured Vatapi. After this victory, he took the title of Vatapi Konda, or the conqueror of Vatapi. He also led successful expedition to Sri Lanka also. Clear children? So this Pallava, he ruled from Kanchipuram, that is near Kanchi, and it is near Chennai. Okay, and their territories at the height of power extended children, and their territories were from the northern part of Andhra Pradesh to river Kaveri in the south also. Understood? So their extent is from the northern part of Andhra Pradesh to river Kaveri in the south. Okay, clear? And this Vatapi, this Badami was occupied by the Pallava king all, that is Narasimha Varman, and who has defeated the Chalukyas. Okay children, so see, they were the powerful, these two rulers, they were the powerful ruler of this dynasty. And Narasimha Varman first, he defeated the Pushkin too. और ये नरसिम्हा वर्मन कौन है चिल्ड्रेन, इनके जो फादर थे वो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जिनको वो पुलिशकिन टू ने हरा दिया था. Right children, see in the first para of your book children, it is he defeated the Pallava king Mahendra Varman first. Right, स्टार्टिंग में जो थे चालुक्य डायनेस्टी के जो पावरफुल रूलर पुलिशकिन टू, उन्होंने किसको हराया था, उन्होंने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया था. राइट,
बट बाद में महेंद्र वर्मन के जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मन, उन्होंने पुलिश्किन को 2 को हरा दिया। ओके, और उन्होंने जो बतापी उनका जो कैपिटल था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। अंडरस्टूड? आफ्टर दिस विक्ट्री ही टुक द टाइटल ऑफ बतापी कोंडा। ओके, सो जब नरसिम्हा वर्मन उनको जीत मिल गई, ओके, उन्होंने ये जो कैप्चर कर लिया बतापी, उसके बाद उन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया, वो टाइटल का नाम था बतापी कोंडा। उसका मतलब होता है द कॉन्करर ऑफ बतापी, राइट? उन्होंने किस जगह को कॉन्कर किया? उनका जो मेन कैपिटल था जो बतापी था, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। अंडरस्टूड? ही आल्सो लेड सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू श्रीलंका आल्सो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीडिशन चिल्ड्रन? दैट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन और जर्नी फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। जैसे वो लड़ाई के लिए कहाँ गए? इवन वो सक्सेसफुल इवन रहे वो श्रीलंका पे भी। ओके, वहां पे भी उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वहां पे भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। ओके, क्लियर? Now, continuous military conflicts weakened the Pallavas. Their rule was ended by the Cholas in the 9th century. Okay, so children, यहाँ पे भी धीरे धीरे okay, जो पल्लवास जो थे मिलिट्री थी उनकी, वो आपस में लड़ने लगी। ओके, देयर वाज एन डिसएग्रीमेंट, देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट विच वीकेंड दिस पल्लवा। इससे जो हो रही थी कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके कारण ये धीरे धीरे जो पल्लवा डायनेस्टी भी है वो कमजोर होती गई। अंडरस्टूड? And their rule was ended by the Cholas in the 9th centuries. Understood? और जो पल्लवास पे चिल्ड्रन जो इस लोगों ने जिन्होंने जीत पाई थी, he was the king of जो चोला डायनेस्टी के जो किंग थे जिनका नाम था आदित्य फर्स्ट, उन्होंने जीत पाई थी पल्लवास पे। अंडरस्टूड? उन्होंने हरा दिया था जो पल्लवास के रूलर्स थे उनको। ओके, सो देयर रूल वाज एंडेड बाय द चोलास इन द 9th century. So children, if you want, you can note down that rule was ended by the Chalukyas in the 9th century by the king, that is Aditya first. Understood? Your name is not written. If you want, you can write that is Aditya first. Okay. Now we will discuss about the administration. Okay, see. Now we get to know about the administrative system of period from the accounts of Fayan and Huinsang. Right, children? So जो administrative system है, okay, जो ये गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड का जितना जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो सारे रिकॉर्ड्स हमें कहाँ से पता चलते हैं? जो फायान ने जो अकाउंट्स लिखे थे और जो हुइनसैंग, ओके, उनके द्वारा हमें सारे अकाउंट्स जो इंफॉर्मेशन है हमें पता चलते हैं। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सारे इंफॉर्मेशन जो है हमें उन्हीं से मिले हैं। क्लियर? नाउ द किंग वाज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्टेड हिम। ओके, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था वो कौन होता था? जो मेन पर्सन होता था वो होता था किंग। ओके, उन्हीं का सारा कंट्रोल होता था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे। और उनमें उनकी जो किंग की मदद इसमें जो करता था, जो गाइड करता था, वो थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे जो उनको गाइड करते थे, जो उनको असिस्ट करते थे। अंडरस्टूड? नाउ द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और भुक्तिस। उनका जो एम्पायर था वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था, जिसको कहा गया है भुक्तिस। ओके, एंड इट इज सिमिलर टू लाइक एनी स्टेट और कंट्री और रिलीजन। अंडरस्टूड? प्रोविंसेस meaning, and you can say provinces also or you can say bhuktis also, and princes were often appointed as the governor of provinces. Understood? So children जो वहाँ के during this and even children they in administration also they were very strong, they were having very good naval power. Okay, they were very strong and they also had a well organized army also. Okay, during the time of Pushkin, two children, the naval forces was very strong and they were having a well organized army also. Okay, and princes were often appointed as the governor of provinces. Okay, जो भी princes होते थे children, वो अपॉइंट होते थे एज अ गवर्नर। हर एक प्रोविंस के हर एक प्रिंसेस अपॉइंट होते थे एंड दे वर असिस्टेड बाय मेनी ऑफिसर, और इसमें उनको असिस्ट करने के लिए काफी ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जाता था। अंडरस्टूड? और ये जो प्रोविंसेस है उनको फिर डिवाइड कर दिया गया था। ओके, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में और विषयास में। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? एंड क्योंकि फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन,
These provinces were further divided into district, or you can say vishyas. Okay, now the yuktas administrate the districts. अब districts पे कौन एडमिनिस्ट्रेट, कौन कंट्रोल करता था, कौन गवर्न करता था, वो थे आयुक्तास. अंडरस्टूड? सो द आयुक्तास एडमिनिस्ट्रेट द डिस्ट्रिक्ट. ओके, एंड देयर वर आल्सो अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आल्सो इन ईच डिस्ट्रिक्ट. और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन होता था? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोग होते थे. ओके, विच हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द डिस्ट्रिक्ट. जो लोग मदद करते थे कि डिस्ट्रिक्ट में सारी चीजें अच्छी तरीके से चल सके. ओके, इट शुड प्रॉपरली work. Okay, all the work should be properly done. Okay, जो सारी चीजें वो अच्छी तरीके से हो, उसके लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी अपॉइंट किया गया था हर एक डिस्ट्रिक्ट में. ओके, which helped in administering the district. Now the village was the lowest administrative unit. Okay, और जो विलेज होता था वो सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहा जाता था. ओके, एंड इट वाज लुक आफ्टर द एल्डर्स ऑफ द विलेज. और विलेज के जो सारे डिसीजंस होते थे वो, ओके, कुछ भी डेवलपमेंट जो भी कुछ करना है, लोगों के विलेज के जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ों को कौन लुक आउट करता था? जो एल्डर्स पीपल होते थे. जिस तरीके से चिल्ड्रन हमने देखा था जो ग्राम पंचायत, जो पंचायती राज के बारे में हमने जैसे पढ़ा था कि जो एल्डर्स पीपल है, ओके, वही लोग जो वेल नोन पर्सन होते हैं, जो एक्सपर्ट पीपल होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं, वही लोग इसका सारी विलेज की लुकआउट करते थे. अंडरस्टूड? दे यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज पीपल. क्लियर? Now we will discuss about the revenue. Okay, now children, agriculture was the main occupation of the people. Much of revenue come from the land. There were numerous revenue officers to collect the revenue. Merchants and craftsmen also paid taxes. The money so collected was used to ensure good administration, give grants and donation, and maintain the army. Okay, to maintain an army consisting of horses, elephant, chariots, and foot soldiers required a lot of money. Okay, so see children, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता था पहले का, चिल्ड्रन जो मेन ऑक्यूपेशन होता था हर जगह हमें दिखाई देगा कि एग्रीकल्चर ओनली. ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वेर एंगेज इन एग्रीकल्चर, राइट? सो दिस वॉज द मेन ऑक्यूपेशन of the people during that time. Okay, so much of the revenue they were getting from the land only. Okay, जो ज्यादा उनको टैक्सेस, जो मनी मिलता था वो किससे मिलता था? फ्रॉम द लैंड. एंड देयर वर न्यूमरस रेवेन्यू ऑफिसर्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू. और बहुत सारे ऑफिसर, न्यूमरस मीन्स ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था जो कि रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे लैंड से. अंडरस्टूड? मर्चेंट एंड क्राफ्ट्समैन आल्सो पेड टैक्सेस. जो मर्चेंट्स होते थे और क्राफ्ट्समैन होते थे वो भी टैक्स भरते थे. ओके, सो द मनी सो कलेक्टेड वाज यूज्ड टू एंश्योर गुड एडमिनिस्ट्रेशन. और जो मनी कलेक्ट होता था वो किस लिए इस्तेमाल होता था? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इवन गिव ग्रांट्स एंड डोनेशन. Okay, and even give grants and donation and maintains the army also. Okay, to maintain an army consisting of horses, elephant, chariots, ये सब चीजों को maintain करके रखना children, it's need a lot of money also, right? Even the elephant they need, even the chariots they need, and the foot soldiers also. Okay, ये सब भी जरूरत था, उनको चाहिए था. Okay, तो ये सब के लिए पैसे तो चाहिए ना, right? क्योंकि उस समय ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी. अंडरस्टूड? जिनके पास घोड़ा हो, हाथी हो, ओके, दैट जो रथ होते हैं, ओके, जो फूट सोल्जर्स, मीन्स इससे क्या पता चलता है? हाउ मच पावरफुल दे आर. ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग देयर आर्मी इज. ओके, कि कितने पावरफुल है इनकी जो आर्मी से, जो सेना है वो कितनी ज्यादा है. ओके, सो वो सारी चीजें, और ये सब के लिए क्या चाहिए था? इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ मनी, राइट? That is why the revenue is collected. Now the last topic which is there in your book, that is new features, right? So the some new development took place during this time. कुछ नई डेवलपमेंट भी चिल्ड्रन हुए इस समय में. ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड. लोकल ऑफिसर्स वेर इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल कंट्रोल. दे टुक डिसीजन ऑफ देयर ओन. ओके, सो चिल्ड्रन जो एडमिनिस्ट्रेशन था इट बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? देखिए पहले क्या होता था, जैसे एक सेंट्रल होता था, मीन्स
जो किंग होता था वो पूरी, जैसे कंट्री की बात करें या पूरे एक स्टेट की अगर हम बात करें, तो वो किंग का पूरे स्टेट पे कंट्रोल होता था। अंडरस्टूड? तो वो राजा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, उसी का पूरा कंट्रोल होता था हर एक स्टेट पे। ओके, बट डिसेंट्रलाइज्ड का मीन्स क्या है? इट इज डिवाइडेड। ओके, जैसे हमने अभी देखा, इट इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। ओके, देन प्रोविंसेस इज अदर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। अंडरस्टूड? और हर एक जगह के कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिए गए जो कि इंडिपेंडेंटली वहां पे वो रूल कर रहे थे। अंडरस्टूड? मतलब अब यहाँ पे एक मेन राजा नहीं है जो कि सब पूरे लोगों पे रूल करेगा, ऐसा नहीं है। अब उनको डिवाइड कर दिया गया है और वहां पे हर एक लोकल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है जो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और उन्हीं का पूरा कंट्रोल होगा उस जगह पे। अंडरस्टूड? सो वो जो डिसीजन है वो खुद से ले सकते हैं वहां के बारे में। क्लियर? So in the region ruled by the Pallavas, there were two local assemblies. और चिल्ड्रन अगर हम पल्लवास के समय की बात करें तो वहां पे उस समय दो लोकल असेंबलीज थी। ओके, एक थी हुर और दूसरी थी सभा। ओके, सो ऐसे दो मीन्स कमिटी थी, कुछ मेंबर्स थे जिसमें कुछ लोग हुर के थे और कुछ लोगों को की एक सभा की असेंबली बनी थी। तो एक हुर की असेंबली थी और दूसरी इज सभा। अंडरस्टूड? सो दिस वर टू लोकल assemblies during that time, and there were also several subcommittees which look after the routine matters of the village. Okay, और कुछ ऐसे सब कमिटीज, छोटी छोटी कमिटीज, अलग अलग कमिटीज भी बना दी गई थी जो कि जो लोग गांव के लोगों की जो रूटीन प्रॉब्लम्स है, डेली प्रॉब्लम्स है, ओके, गांव की प्रॉब्लम्स की वो सॉल्व कर सके। जैसे कि लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, डिगिंग ऑफ वेल्स, मेकिंग रोड्स, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स, प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड एक्सेट्रा। ओके, सो ये सब कमिटी बना दी गई थी कि जो वो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके और ये सब डेवलपमेंट जो है वहां पे कर सके। इज दैट क्लियर? Yes. Now some administrative positions became hereditary. On many occasions, the son succeeded to the post held by his father. Okay. Now कुछ administrative position children जो दी जाती थी उस समय वो hereditary थी। मतलब क्या? मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो चला आता है। ओके, जैसे जो ग्रैंडफादर के बाद जो उनके पोस्ट जो संभालेगा उनका वो जो बेटा होगा, जैसे वो संभालेगा। जैसे फादर है, फादर के बाद जो पोजीशन संभालेगा वो कौन संभालेगा? उनका बेटा संभालेगा। उसके बाद कौन संभालेगा? जो आगे और जो जनरेशन बढ़ेगी। ओके, सो उस तरीके का तो ये हेरिडिटरी सिस्टम था। ओके, फादर के बाद जो पोजीशन मिलनी चाहिए किंग की, जो मेन, वो किसको मिलेगी? उनके बेटे को मिलेगी। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके का जो रूल है वो चला आ रहा था। जो पोजीशन लोगों को मिलती थी वो हेरिडिटरी बेस्ड थी। ओके, on many occasions, the son succeeded to the post held by his father also. Clear? Now, the administrative officers came to be paid in land grants instead of cash. जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जिनको अपॉइंट किया था गया था चिल्ड्रन, उनको उनकी जो पेमेंट होती थी वो कैसे होती थी? उनको लैंड ग्रांट कर दिया जाता था, उनको लैंड दे दिया जाता। अंडरस्टूड? और इंस्टेड ऑफ कैश। ओके, उनको कैश नहीं दिया जाता था, उनको जो लैंड है वो दे दिया जाता था। ओके, द ऑफिसर कि जिससे वो एग्रीकल्चर का जो सारा काम जैसे हो सके वो सब हो सके। ओके, now even the officers were expected to collect revenue from this land. ओके, और ये जो ऑफिसर्स है कुछ अपॉइंट किए गए थे क्या कलेक्ट करने के लिए? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। जितने भी लैंड थे उससे उनको रेवेन्यू उनको दे दिया गया था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे। ओके, ये सब लैंड से। दिस मेड देम इवन मोर इंडिपेंडेंट, और इससे क्या हुआ कि वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगे। ओके, वेन एवर देर वॉज अ वीक रूलर at center, they broke away from his control and declared themselves independent. और चिल्ड्रन जब कभी भी जैसे कोई वीक रूलर अगर रूल करता तो क्या करते? उसको वो लोग हरा देते। ओके, उनको डिफीट कर देते और अपना कंट्रोल वहां पे उस जगह पर कर लेते। इन दैट टेरिटरी, ओके, दे यूज टू कंट्रोल एंड डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। और उनको हरा के वो वहां के जैसे राजा बन जाते और वहां पे सारे डिसीजन वो खुद से लेने लगते, इंडिपेंडेंट हो जाते। ओके, सो व्हेन देयर वाज अ वीक रूलर एट दैट सेंटर, दे ब्रोक अवे फ्रॉम हिज कंट्रोल एंड डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट। उनको हराकर वो वहां के राजा बन जाते। क्लियर चिल्ड्रन? So till here only we that means the children, the entire chapter is completed. So children just wait.
So children, I hope whatever we have discussed today is clear to all of you. Yes. So children, today we have completed this chapter, right? So children, today we have discussed about the Chalukya dynasty, right? Under that we have discussed about the powerful ruler that was Pushkin II, right? He was the greatest ruler of the Chalukya dynasty, right? Then after that we have discussed about the Pallavas, right? And which are the two important powerful ruler in Pallavas? One was Mahendravarman first and the other one was Narasimha Varman first, right? These were the two powerful rulers of Pallava dynasty, right children? And after that we have discussed about the administration structure, then revenue, right? From where they used to collect the taxes. So they used to collect the taxes from the agriculture, then from the merchants and even from the craftsmen also, right children? And then we have discussed about the new features also, right? What are the new development has took place, okay, in that during that time, right, in that period. Clear children? So please read the whole chapter for better understanding. Okay children? So children, goodbye, take care, stay home and stay safe.